A very good morning to all my dear students. I hope you all are safe at home. Okay, last time we were doing the chapter terms and concepts in sociology, and we have done about the basic terms as well as we have done about the Kazi groups, we have done about the meaning of social groups, and also we have done about the role playing and role conflict. Okay, today we are going to do about the types of social groups. Okay, social groups के types क्या होते हैं? Dear students, there are different types of social groups जैसे कि primary and secondary group, in group and out group, community and society or association, reference group and peer groups. Let's start with primary groups. Primary groups के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है. Primary groups का मतलब होता है एक small group of people who are connected by intimate personal association. प्राइमरी ग्रुप्स हमारे इंक्लूड करते हैं फैमिली, ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत पर्सनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं. सो दोज आर प्राइमरी ग्रुप्स. सेकेंडरी ग्रुप्स में देयर इज़ लैक ऑफ इंटीमेसी, जैसे कि कोई भी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप या इकोनॉमिक एसोसिएशंस. इफ़ वी टॉक अबाउट इन ब्रीफ, प्राइमरी ग्रुप का मतलब है द ग्रुप्स विच आर स्मॉल इन साइज, they have intimacy, they have proximity, there is general responsibility, you share a common bond, you share feeling of cooperation. Secondary group, on the other hand, they are large in size, there is indirect, there is, you can say, formal relationship, and in that group you just perform your duties for the fulfillment of special interests. There is limited responsibility as compared to primary groups, and in other words we can say there is impersonal relationship. That means you are working under someone, suppose, so you are working in a group, you are working with your colleagues, and if you are in your family, doing work for your family, doing all your responsibilities, fulfilling all your responsibilities, that is primary group. So this was the difference between primary as well as secondary group. After primary and secondary group comes our in group and out group. As the name suggests, in group मतलब जिस group के अंदर हम exist करते हैं, जिस group के अंदर we have a we feeling amongst us. And out group, as the name suggests, there is lack of we feeling. उस group के बाहर हम अपने आप को समझते हैं. Again, in group, it has face-to-face relationship, but there is no face-to-face relationship in out group. Then in group, again you have a feeling of cooperation. It is more or less similar to primary group, we can say, but not exactly the same. In group, again we have the feeling of sacrifice, we have a feeling of cooperation among the members. ठीक है, लेकिन आउट ग्रुप में क्योंकि हम मेंबर्स को ज़्यादा अपना नहीं मान पाते हैं, दैट्स वाई वी डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन. देन अगेन in group there is perfect relationship, there is domestic relationship, but in out group there is only working, there is only formal relationship, there is imperfect relationship. So that means you can say more or less in group is similar to the primary group and out group is more or less similar to secondary group. Then there is some difference between community and society, my dear students. Community अगर हम बात करें तो it refers to human relationships that are highly personal, intimate. Society is human relationship that are impersonal, क्योंकि जब हम एक society में रह रहे हैं, हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो कोई there is no personal relationship. As a member of society, we all are living together. Then community is a group of people who live together in a particular locality. मतलब आप एक locality में रह रहे हो, ठीक है, एक साथ रह रहे हो, you are sharing the basic conditions of a common life, that is community. Society में there is every relation which is established among the people. That means there is element of likeness, there is element of difference in the society. अलग अलग कास्ट के लोग एक ही छत के नीचे एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं. Community is a group of people living together in a particular locality, whereas society has no definite boundary. मतलब सोसाइटी यूनिवर्सल है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है कि आपको एक ही लोकेलिटी में रहना है. Community is concrete, society is abstract. Community is a group of people living in a particular locality. They have a feeling of oneness कि हम एक locality में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं. एक छोटी सी locality में अगर कुछ लोग रह रहे हैं, उनके बीच में obviously वो bonding होगी. अगर हम एक बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी जैसे मैंने कहा इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. सोसाइटी का जो नेटवर्क है वो थोड़ा वास्ट है. इट्स अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी के बहुत सारे रिलीजन्स के लोग इसके अंडर रह रहे हैं. अब ये नहीं मेंशन होता
कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम नहीं रह सकते। सोसाइटी के अंदर सब तरह के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के रहते हैं, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। देन कम्युनिटी, वी कैन सी द ग्रुप एंड लोकेट इज एग्जिस्टेंस। लेकिन हम सोसाइटी में ग्रुप नहीं देख सकते, उसकी एग्जिस्टेंस लोकेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है पारसी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, और सोसाइटी का अगर एग्जाम्पल लें तो आर्य समाज सोसाइटी, हरिजन सोसाइटी। इनके अलावा भी जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, अगर मैं नॉर्मल कैजुअल सोसाइटीज़ में अगर ऐसी ही बात करूं, तो वो भी सब सोसाइटीज़ हैं जिसमें अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कस्टम्स फॉलो करने वाले भी लोग रहते हैं। तो उसका नेटवर्क बहुत वास्ट है। लेकिन कम्युनिटी है एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस इन कम्युनिटी एज़ कम्पेयर टू द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स एज वेल। After society, community comes our community and association. Community is a whole, association is partial. Association community से भी छोटी है। Association of persons जैसे हम बोलते हैं, community of persons नहीं हम बोलते हैं। Community को हम as a whole ही लेके चलते हैं। Community is a natural growth, association is an artificial creation. Community जो है, that means इट एम्ब्रेसेस ऑल पर्पसेस, मतलब इट डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हम फॉर्म करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या पर्पस को अचीव करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी की जो मेंबरशिप है दैट इज़ कंपल्सरी। हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपको उसका मेंबर बन के रहना पड़ेगा। लेकिन मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ वॉलंटरीली। इफ़ यू वांट टू बी द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको नहीं होना है तो इट्स योर विश। कम्युनिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर, दैट मीन्स, एंड एसोसिएशन इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर। नाउ इन कम्युनिटी इट वर्क्स थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लेकिन एसोसिएशन जो है एज इट इज़ फॉर्मल, सो इट वर्क्स मोस्टली थ्रू रिटन लॉज एंड रूल्स। कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे ज़्यादा ध्यान देती है। एसोसिएशन एक ऑब्जेक्टिव को क्योंकि अचीव करने के लिए फॉर्म होती है, तो दैट इज़ वर्किंग थ्रू रिटन लॉज एंड रूल्स। नाउ कम्युनिटी बेसिकली इट रेफर्स टू द ह्यूमन रिलेशनशिप दैट आर पर्सनल, इंटीमेट, एंड पर्सनस इन्वॉल्वमेंट इज़ टोटल, राइट। लेकिन जो अगर हम सोसाइटी एसोसिएशन की बात करें तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप है जो कि इम्पर्सनल है, ट्रांसिटरी है, टेम्प्रेरी है, एंड पर्सनस इन्वॉल्वमेंट इज़ रैशनल। मतलब जब पर्पस आपका अचीव हो गया तो आपकी एसोसिएशन ख़त्म हो सकती है, लेकिन कम्युनिटी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद हमारे आते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। अब इसको नाम को अगर हम पढ़े रेफरेंस ग्रुप्स, तो रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब है जिस पर्सन को आप रेफ़र करो, मतलब a person or any group of people who look up to you and aspire to be like someone. Suppose मेरा कोई रोल मॉडल है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ, तो मैं उसको ही रेफ़र करूँगी कि मुझे इस पर्सन की तरह बनना है। मतलब आप उसके लाइफ स्टाइल्स, उसके पर्सनस के कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन, सो यू गेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ दैट पर्सन, अबाउट द लाइफ स्टाइल, अबाउट द गोल अटेनमेंट, सब चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप्स इन कॉलोनियल पीरियड में, तो कई मिडिल क्लास इंडियंस दे हैव एस्पायर्ड टू बिहेव लाइक इंग्लिशमैन। ठीक है, इंग्लिशमैन उनके लिए इंस्पायरिंग होते थे, तो उन्होंने इंग्लिशमैन की तरह एक्ट करने की कोशिश की है। मतलब रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, जिन लोगों को आप रेफ़र करना चाहते हो, जो आपके रोल मॉडल हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, दोज आर रेफरेंस ग्रुप्स। जैसे कि मैं रेफरेंस ग्रुप्स की बात कर रही हूँ कॉलोनियल पीरियड में, तो इंडियन मैन दे वांटेड टू ड्रेस अप लाइक द इंग्लिश मैन, ब्रिटिश मैन, एंड द इंडियन वीमेन दे रिमेन्ड इंडियन इन देयर वेज, और दे एस्पायर टू बी लाइक इंग्लिश वीमेन, वो उनको रेफ़र करते थे। लेकिन अगर हम रेफरेंस ग्रुप इन कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करें, तो रेफरेंस ग्रुप्स दे सर्व एज द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल्स इन देयर परचेज और कंजम्पशन डिसीजन। मतलब किस तरह के कपड़े खरीदने हैं, क्या पहनना है। For example, we typically refer to those ground as like friend or peer groups, colleagues, जो भी हम जिसे भी रेफ़र करें, या हम बात करें बेसिक कॉमन एग्जाम्पल लें हम सेलिब्रिटीज़ का, स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, ठीक है, एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, कॉमेडी एक्टर्स का, तो जिनको भी आप रेफ़र करते हो, जिनकी तरह भी आप, जिनका लाइफ स्टाइल भी आप फॉलो करना चाहते हो, दोज आर रेफरेंस ग्रुप्स।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर पीयर ग्रुप्स. पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर मीन्स योर फ्रेंड्स. सो पीयर ग्रुप्स इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप. जैसे प्राइमरी ग्रुप मैंने आपको बताया, दीज आर पर्सनल ग्रुप्स, इंटीमेट ग्रुप्स, usually formed between individuals who are either of similar age or common profession. That means they are refers to the social pressure it exerted by one's peers on what ought or not to be. Peer group basically ये मतलब है, these are primary groups, मतलब obviously small in size, personal relationship, intimacy, वो सब है, cooperation, sacrifice. ओनली द डिफरेंस इज़ दे आर ऑफ सिमिलर एज, या फिर एक ही प्रोफेशनल ग्रुप में, या तो दो लोग सिमिलर एज के, उनमें बॉन्डिंग अच्छी है, कोऑपरेशन है, दे शेयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो पीयर ग्रुप्स कहलाए जाएंगे. नहीं तो द पीपल हु आर इन अ वर्किंग इन अ प्रोफेशनल ग्रुप, दे हैव क्लोज इंटिमेसी, दे हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सो दोज आर पीयर ग्रुप्स या फ्रेंड सर्कल बेसिकली. So these were the certain types of social groups, and with this we complete this chapter. The assignment related to the same have been uploaded on the website. Hope you have understood the chapter. In the next lecture, we are going to proceed with the other chapter. Thank you and take care of yourself.